Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we basically going to study the second method of chemical deposition, that is the chemical vapor deposition. As the name suggests, there is some chemistry involved in there, or there must be some chemical reaction involved in depositing a film on the surface of the vapor. Okay, today we basically going to study about the chemical deposition process, how it happens, and on what things it can depend upon, what are the important steps involved in it. And in the next lecture, we will basically discuss about the different types of CVDs that we basically use in hydrocarbon process. Okay, so chemical vapor CVD is very important microchemical process. We normally use it to deposit dielectrics, silicon, and different metals in microchemical process. Or the important thing is that the the film is very much uniform, and there are very little defects in CVD process, and it's a very uh, it's a very famous process for use for chemical deposition. Normally performed in furnaces like we have used or discussed in oxidation and in thermal. Large furnaces CVD can enter. Also, in newer design, single wafer reactors can also be used for CVD processes. So, there are a variety of ways by which basically you can perform CVD in different types of furnaces. Chemical reaction produce the desired specific being deposited. So, as a result of the chemical reaction हमारे पास होगा, उसके नतीजे में जो डिजायर्ड स्पीसी जो हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं किसी फिल्म के किसी वेपर के ऊपर, जैसे लगे डायरेक्टली डिपॉजिट करना चाह रहे हैं या फिर मेटल डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो वो उसके नतीजे में जो है वो अगर इन वेरी ओवर in initial lectures I have discussed about the polysilicon deposition में यहाँ पे हमने साइलेन या सिलिकॉन डिपोजिशन साइलेन को यूज किया था, दैट वाज आल्सो अ सीवीडी प्रोसेस. तो इन सिमिलर यानी कि आप देखेंगे किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो है आपको डिजायर्ड जो स्पीसी है वो अचीवेबल होगी. ओके, जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू regimes in which reactions can occur. Or here we are basically discussing about the homogeneous reactions and the heterogeneous reactions. Okay, homogeneous reactions जो हैं they occur in basically in the gas phase. जब यानी जब आपके जो reactants हैं वो gas phase में and they react with each other, and as a result of it solid is produced which then lands on the surface. और ये homogeneous reaction कहलाएगा अगर आपका जो reaction है वो जो है वो गैस फेज होगी. सेकेंड आपके लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये आपके पास यूनिफॉर्मिटी ओवर होगी और यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ लेयर नहीं हो सकती. वेयर एज अगर हम हेटेरोजेनियस रिएक्शन की बात करें तो दे अगर ऑन द सॉलिड सरफेस, जिस जहाँ पे आप सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वहाँ पे जो है वो रिएक्शन और जो सॉलिड फॉर्म होगा वो डिपॉजिटेड फिल्म होगी और वो हमको बड़ा यूनिफॉर्म होगा, वहाँ पे आपके पास मिनिमम डिफेक्ट्स होंगे. एज ए रिजल्ट वी नॉर्मली ट्राई टू बेसिकली इन सीवीडी टू यूज हेटेरोजेनियस रिएक्शन रादर देन होमोजेनियस रिएक्शन. अब हम देखते हैं कि सीवीडी प्रोसेस जो है किन प्रोसेस से क्या स्टेप्स जो हैं वो सीवीडी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं. So this gives a very interesting overview of the CVD process. In we can easily see that basically there are 7 steps involved. very डिटेल में अगर हम हमारे पास एक वेपर सरफेस है जिसके ऊपर हमने थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है एंड और जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे वो गैस फॉर्म में होंगे, गैसोलीन के साथ हैं. तो अगर हम ये देखेंगे वो क्या क्या प्रोसेस है, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्टेंट्स टू दी डेपोजिशन. तो दिस इज द डेपोजिशन रीजन. यहाँ तक गैस फॉर्म में जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनको यहाँ पर लाया जाए. तो पहला तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम मेन स्ट्रीम गैस स्ट्रीम टू बाउंड्री लेयर टू द वेपर सरफेस. ये जो दूसरा प्रोसेस है ये बड़ा है.
प्रोसेस में ये होता है कि जो आपके पास गैस में स्टीम के अंदर अवेलेबल रिएक्टेंट्स उनको सरफेस ऑफ सॉलिड जहाँ पे आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं वेपर वहाँ तक लेते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है ये डिफ्यूजन वेरिएंट होता है। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस इन थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ये इट डिपेंड्स ऑन द डिफ्यूजन रेट कांस्टेंट्स के, जहाँ पे इतनी तेजी के साथ जो है गैस रिएक्टेंट्स जो हैं उनको आप सॉलिड सरफेस पे लेके आ सकते हैं। Third is absorption of reactants on the vapor surface. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो absorption है एक new word and obviously lot of people will basically try to think about it कि ये है क्या। अब आपने absorption के बारे में पता हो कोई चीज़ absorb करना है किसी solid surface के अंदर absorption है। तो absorption is all about basically कि अगर आप जो चीज़ आप उसके अंदर diffuse करना चाह रहे हैं वो उसका हिस्सा बन जाए solid। Whereas in absorption जो चीज़ आप सॉलिड सरफेस लाना चाह रहे हैं वो सॉलिड सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाती है, वो एडहेसिवली स्टिक कर जाती है, अंदर नहीं जाती सॉलिड के अंदर, जैसे ही बनती है सरफेस के ऊपर रेसिडाइड करती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। चलिए नेक्स्ट क्या है जी, फोर्थ स्टेप ये जो है, नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप, सरफेस रिएक्शन अगर करें जो भी आप केमिकल रिएक्टेंट्स गैस फेज में आपने सेकंड स्टेप के अंदर ट्रांसपोर्ट किए थे गैस से स्टीम से ऊपर सरफेस पे, यहाँ पे उनके दरमियान जो है वो रिएक्शन और इस रिएक्शन के लिए मेरे को केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सिंपल रिएक्शन है कि वो डिकम्पोजिशन हो गई या मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज कर लिया और वो जो है सरफेस माइग्रेशन प्रोटेक्शन साइट्स इनकॉर्पोरेशन अदर सरफेस रिएक्शन। तो ये बेसिकली जो भी आप मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे रिएक्शन के आपस में रिएक्शन की वजह से उनको आप वेपर की सरफेस के ऊपर ऐड कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, ठीक है, अटैच विद द वेपर एडहेशन हो जाएगी, वो जुड़ जाएंगे। ओके, दूसरा सेकंड ये है डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप डिसॉल्व करेंगे यानी सरफेस से रिमूव करेंगे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स टू बाउंड्री लेयर। जो आपके पास बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करती है ये बेसिकली एक बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट बिटवीन द गैस फेज एंड द सॉलिड। तो बेसिकली जो बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करती है उससे उसको डिसॉल्व करेंगे, रिमूव करवाएंगे टू बाउंड्री लेयर, ट्रांसपोर्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द डिपोजिशन। तो ये यहाँ से आप इसको डिपोजिट। तो ओवरऑल अगर आप प्रोसेस को गैस स्ट्रीम के अंदर आपके पास रिएक्टेंट्स थे उनको आपने बाउंड्री लेयर्स सॉल्व करवाया, मूव करवाया जो है सरफेस ऑफ वेपर, ये बेसिकली डिफ्यूजन ओरिएंटेड हो गया। फिर यहाँ पे जो है थर्ड स्टेप में आपने एब्जॉर्प्शन की रिएक्टेंट्स की सरफेस के ऊपर और फोर्थ स्टेप में उनका रिएक्शन हुआ एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल्स आपको जो आकार से डिपॉजिट करना हो डिपॉजिट हो गया और जो रिमेनिंग बायो प्रोडक्ट्स उनकी आपने डिसॉर्प्शन की through the boundary layer to the gas stream और gas stream से उसको remove करा। ये ओवरऑल डिटेल्ड प्रोसेस है सीबीडी का। तो बेसिकली यू में गेट इन क्वेश्चन के लिए किस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इस प्रोसेस को। ये बेसिकली इस जो पिक्चर है और फिर उसके साथ ये जो स्टेप्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखना चाहें कि क्या इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली सारे जो स्टेप्स हैं वो नेसेसरी नहीं है कि हम उनको मॉडल करें या सिंप्लीफाई करें। हम यहाँ पे बेसिकली चाहते हैं कि सीवीडी प्रोसेस को मॉडल करके हम बेसिकली वो चीज़ें या रेट्स फाइंड आउट करें जिनको यूज करते हुए हम इस जो हमारा प्रोसेस है उसको हम स्टडी कर सकें, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकें। तो सिंप्लीफाइड सीवीडी मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो मेनली आपके पास दो स्टेप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्टेंट्स टू वेपर सरफेस, ये डिफ्यूजन ओरिएंटेड है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो। और सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन जो होता है वेपर सरफेस के ऊपर जो है रिएक्शन अगर कर रहा है वो इन बेसिकली अगर मैं इन स्टेप्स की तरफ जाऊँ तो मेरे पास दो बड़े इन स्टेप्स हैं, सेकेंड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अदर स्टेप्स पे जो है रिएक्शन रेट जो है वो डिपेंड नहीं करे। तो रिएक्शन रेट इज बेसिकली डिपेंडेंट कि आप कितनी तेजी के साथ गैस लीक से रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व करते हैं वेपर सरफेस को। और चौथा स्टेप जो है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द नेसेसरी केमिकल एंड द बायो प्रोडक्ट्स। तो ये दो
स्टेप्स हैं जो रिएक्शन के जो रेट वो है वो डिटरमिन करेंगे। बाकी जो आपके पास जो स्टेप्स हैं दे आर नॉट दैट मच इफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। ओके, सो हम इन दो स्टेप्स को किस तरीके से मॉडल कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। अदरवाइज सीवीडी जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इतनी सिंपली आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस occurring at the same time, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ एक कुछ बेसिक जो बुनियादी समझते हैं कि जो स्टेप्स हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए और उनकी बुनियाद से हम रिएक्शन रेट को फाइंड आउट करें। बेसिकली आप ये हम जो देखते आए हैं कि किसी भी प्रोसेस को मॉडल किया जाता है ताकि हम फिर उस प्रोसेस की जो डिफरेंट डायनामिक्स हैं उसके बारे में स्टडी कर सकें। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस बताया था कि ये डिफ्यूजन ऑफ दी गैस फेज में जो रिएक्टेंट्स हैं उनको डिफ्यूज करना सॉलिड सरफेस पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है मैंने पहले जो फ्लक्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू वेपर सरफेस जो है J1 इसको फाइंड आउट करने के लिए फिक्स लॉ, फर्स्ट फिक्स लॉ अप्लाई किया। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गैस फेज में रिएक्टेंट ज़्यादा हैं और सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट कम। So obviously due to this gradient आपके पास एक diffusion होगी gas phase से reactants की to the surface of the wafer. So obviously it will depend upon the diffusivity concept. इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर में सिंप्लीफाई करने के लिए जो डेरिवेटिव है उसको हमने सिंपल करने के लिए कर दिया है कि उसको डिवाइड कर दिया है बाउंड्री लेयर से। बाउंड्री लेयर मैंने जैसा कि पहले बताया था, बाउंड्री लेयर इज द लेयर बिटवीन द गैस फेज एंड द सॉलिड फेज। तो उसको हमने डेल्टा से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और इसको जो है हमारा डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट था उसको हमने डिफ्यूजिविटी ऑफ रिएक्टेंट इन गैस डिवाइड बाय द बाउंड्री लेयर थिकनेस कर दिया। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसका जो नाम है वो मैस ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। इधर अगर आप देखें तो हमने दो कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर किया है, Cg दैट इज द concentration of reactants in the gas phase and Cs that is the concentration of reactants on the solid surface। ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारा जो है ये फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके पास रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, अराइव कर रहे हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो उसका फ्लक्स जो है वो हमने डिस्प्ले किया है फर्स्ट स्टेप। ये बड़ा सिंप्लीफाइड मॉडल है, अदरवाइज ये बड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप इज रिएक्शन। जो आपका जो रिएक्टेंट हो रहा है सरफेस की जो ऊपर रिएक्शन हो रहा है उसके नतीजे में जो बाय प्रोडक्ट्स बन गए तो इसमें ये देखा तो सिंपली फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन सिंपली किसी भी मॉलिक्यूल को डिसोसिएट किया गया फ्लक्स ऑफ रिएक्टेंट एज इट रिएक्ट्स। एंड क्या है ये फ्लक्स जब रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे के साथ तो पीएस रिएक्शन। इसके बाद जो है हमारा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट द वेपर सरफेस। तो ये बेसिकली जो फ्लक्स है उसको हमने सिंपली जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये वो दो बुनियादी स्टेप्स हैं जिनको हमने इन दो मैथमेटिकल सिंपल रिलेशन से जो है वो रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट इज बेसिकली दी स्टडी स्टेट। ओके, तो जहाँ पर ये ऑब्वियसली दोनों जो है यानी जितनी तेजी के साथ जो है रिएक्टेंट से गैस फेज से सॉलिड फेज की तरफ एब्जॉर्ब हो रहे होंगे और ऑन द सॉलिड सरफेस जो रिएक्ट कर रहे होंगे, जब ये दोनों हमारे पास फ्लक्सेस सेम हो जाएंगे इन द स्टडी स्टेट तो फिर स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी, ठीक है। एंड इन द स्टडी स्टेट ये दोनों जो फ्लक्सेस होंगे दे विल बी दी सेम। इसको हम यूज करते हुए जो हमारे पास अननोन है कंसंट्रेशन एट द सरफेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी फाइंड आउट और वो हम बड़ी सिंपली एलिमिनेट करके आप ये वैल्यू निकाल लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द सरफेस। ओके, इसी की बुनियाद पे हम जो है सिंप्लीफाइड रेट इक्वेशन डेवलप कर लेंगे, ठीक है। और सिंप्लीफाइड रेट इक्वेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस बेसिकली गिव्स द रेट ऑफ द रिएक्शन और इसका हम इस तरीके से हासिल किया है हमने बेसिकली के टी दैट इज द ओवरऑल कांस्टेंट। दिस ये जो ओवरऑल कांस्टेंट है डिपेंड्स अपॉन द मास ट्रांसपोर्ट जो आपके पास जो हो रही है, ये जो है मास ट्रांसपोर्ट कोएफिशिएंट गैस उसके ऊपर डिपेंड करता है प्लस जो आपका रिएक्शन रेट उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके पास एक ओवरऑल कांस्टेंट आ जाएगा रेट कांस्टेंट, ठीक है। ओके, ओवरऑल जो रेट कांस्टेंट आपके पास आ रहा है जीएसएस इज इक्वल टू केटी टी। तो आपके पास जो स्टेडी स्टेट रेट इक्वेशन आ रही होगी दैट वुड बी इक्वल टू
के टी मल्टीप्लाइड बाई सी जी, और यहाँ पे के टी जो है वो दिस। विद द हेल्प ऑफ दिस आपके पास जब ये फ्लक्स आ गया तो यू कैन डिवाइड द फ्लक्स बाय द नंबर ऑफ atoms per centimeter cube in the positive spin, and you will get the overall deposition. इस रेट के ऊपर डिपोजिशन हो रही है ऑन द वेपर surface. So we just simply divide the JSS, that is the steady state जो हमारे पास फ्लक्स था उसको हम डिवाइड कर देंगे number of atoms per centimeter cube to get the deposition. Okay, so now we basically have the overall deposition rate. Simply इसी के अंदर जो एजेसेस की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, AT ओवर CG ओवर N, और ये जो CG है ये आपने इसे कन्वर्ट कर दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. This can be done with the ideal gas law, and you all know about the ideal gas law, that is PV is equal to nRT. Here we have basically replaced R with the K. K is the Boltzmann constant. Simply जो है ये units का difference है जो हमने किया है, and we get this relationship. So यहाँ पे अगर आप देखें जो आपका जो डिपोजिशन रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड अपॉन कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर जो है डिपेंडेंट नजर आ रहा है. ठीक है, ओके. अब हम आगे देखते हैं कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो आपके पास ओवरऑल ये हुआ डिपोजिशन रेट, इसको बेसिकली ये किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड कर. तो इसमें जो सबसे अहम है वो आपके पास ये गैस जो ओवरऑल कांस्टेंट आया है इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे उसके ऊपर अगर हम देखें तो ये डिपेंडेंट है, और वो इस तरीके से डिपेंडेंट है कि अगर हमारा जो रिएक्शन रेट है if it is very much greater than the जो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है उससे अगर बड़ा है तो हम ये कहते हैं, अगर हम ये बड़ा कर दें तो ऑब्वियसली अगर आपके पास देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा एच जी के एस, और अगर के एस बड़ा है बहुत ज़्यादा एच इसको निगलेक्ट करते हैं, के एस गेट cancel, and we get this KT is equal or approximately equal to mass transfer coefficient. Obviously, this mass transfer coefficient will basically depend upon the diffusion. तो ये डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन बन जाएगा अगर हम इस सिनेरियो में देखें तो ये दो रिजीम्स की ये रिएक्शन आपका चल रहा है. एक तो ये है कि ये डिफ्यूजन कंट्रोल्ड है, एंड सेकंड अगर आपका केएस जो है वो वेरी वेरी मच लेस देन मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप इसमें ये वैल्यूज रिप्लेस करें तो यू विल बेसिकली इवेंचुअली गेट दी केएस. तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो रिएक्शन रेट कंट्रोल हो जाए. तो इन रियलिटी ये जो दो रिजीम है वो ये डिपेंड कर रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस है सीवीडी का वो या ये जो सेकंड प्रोसेस का और जो फोर्थ स्टेप है इनमें से किसके ऊपर डिपेंड है. वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड कर रही हैं कि जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं इन दोनों सेट्स के उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है. अगर रिएक्शन रेट जो है वो ग्रेटर है डिफ्यूजन रेट से तो आपका प्रोसेस की जो कंट्रोल है वो डिफ्यूजन कंट्रोल है, और अगर रिएक्शन रेट लेस देन है डिफ्यूजन रेट से तो आपका जो प्रोसेस है वो रिएक्शन रेट कंट्रोल. तो इतनी तेजी के ये दो बेसिकली रिजीम है जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट कि ये जो पार्शियल प्रेशर था यहाँ पे हमने लिखा था ये हमें बहुत लो रखना पड़ेगा. अगर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हाई हो तो एज ए रिजल्ट आपके पास होमोजीनियस रिएक्शन हो जाएगा. तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैस फेज के अंदर ही आपस में रिएक्ट कर देंगे रादर ये कि सॉलिड फेज में. तो आप ये देखिएगा गैस फेज का मतलब ये कि जहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, जबकि हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन यहाँ पर सरफेस. तो इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट किया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मस्ट बी लो टू प्रिवेंट होमोजीनियस रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो हमारे पास ये हमने यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंडेंट. तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन के लिए जो आपको रिक्वायर्ड एनर्जी इज मच मच ग्रेटर देन दी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द गैस. तो ऑब्वियसली आपका जो रिएक्शन रेट कंट्रोल्ड है उसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, वेयर आपको जो गैस डिफ्यूजन के लिए एनर्जी चाहिए वो बहुत कम चाहिए. अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप सोच रहे हैं कि हम बेसिकली रिलेट क्या करना चाह रहे हैं, इस तरफ जो है वो डिस्कशन को लेके जा रहे हैं. तो मेनली ये है
ये जो हमने ये दो कॉन्स्टेंट निकाले थे के एस और एच जी, देखना चाह रहे हैं कि ये के एस और एच जी किस चीज़ पे मेनली डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली जिस चीज़ पे ये डिपेंड करेंगे उसी पे आपका रिएक्शन रेट भी डिपेंड करेगा। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि जो आपके पास एट हायर टेम्परेचर के एस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा एच जी के साथ। तो एज ए रिजल्ट आपकी जो रेट लिमिटिंग फैक्टर है वो डिफ्यूजन हो जाएगी, जो बाउंड्री लेयर के थ्रू आपकी गैस रिएक्शन यूज हो रहे थे वेपर सरफेस के ऊपर उस पर डिपेंडेंट हो गया। वेयर एज एट लो टेम्परेचर टीएस जो है वो वेरी मच लेस देन दी मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो आपका जो प्रोसेस का जो रिएक्शन रेट है इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द रिएक्शन रेट लिमिटेड हो जाएगा। सो ऑब्वियसली हमने देखा कि बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। आपका जो प्रोसेस है वो मेनली डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर प्रोसेस है वो डिफ्यूजन लिमिटेड हो जाएगा, और अगर आपका टेम्परेचर कम होगा तो वो प्रोसेस जो है रिएक्शन रेट डिपेंडेंट। दिस कैन इजीली बी रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लॉट। इस प्लॉट को बेसिकली हम अर्नियस प्लॉट भी कहते हैं। और अर्नियस प्लॉट्स होते क्या हैं? बेसिकली अर्नियस प्लॉट्स है बेसिकली अर्नियस प्लॉट जो हैं वो एक डिस्प्ले करते हैं लॉगरिथम ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट प्लॉटेड अगेंस्ट दी रेसिप्रोकल ऑफ द टेम्परेचर। इसको हम बेसिकली सूडो अर्नियस प्लॉट कहेंगे, क्योंकि जो डिपोजिशन रेट है वो बेसिकली रिएक्शन रेट कांस्टेंट पर डिपेंडेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि बेसिकली जो डिपोजिशन रेट है वो डिपेंड कर रहा है के एस, या तो के एस पर डिपेंड करेगा या एच जी। ये दोनों कांस्टेंट हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये प्लॉटिंग करें तो आप देखेंगे कि इधर जो अगर हम देखें तो इसका जो स्लोप है दैट गिव्स यू दी एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर इस कर्व का स्लोप देखें तो यहाँ पे जो स्लोप है वो बहुत लो है, बहुत कम है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने कहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी और गैस है इट्स वेरी लो। वे और ये जो होगा इधर अगर आपका प्रोसेस चल रहा है दैट इज एट दिस टेम्परेचर, अगर आपका प्रोसेस चल रहा है तो वो डिफ्यूजन कंट्रोल। वेर अगर इस रिजीम के अंदर आपका प्रोसेस लाए कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखें लो टेम्परेचर, तो आपका जो प्रोसेस होगा वो रिएक्शन रेट कंट्रोल होगा, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द केएस एट द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। So obviously, here we can clearly see that this plot will give us the two regimes in which the CVD process can occur. In one regime, that is of high temperature regime, the process would be diffusion control, and in low temperature regime, the process would be the independent upon the reaction rate. So that completes our first topic related to the CVD process. मेनली हमने सीवीडी प्रोसेस के बारे में पढ़ा के देखा कि सीवीडी प्रोसेस है क्या और किन बुनियादी स्टेप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फिर हमने उसका ओवरसी एक simplified model developed, and using that simplified model we found out that process is dependent on basically two constants, Ks, the reaction rate control constant, and the Hg, the Julian control constant. तो हमने फाइंड आउट किया कि जो हमारा सीवीडी का प्रोसेस है इट इज डिपेंडेंट ऑन इज बेसिकली ऑपरेट्स इन टू रीजन्स, या तो ये डिफ्यूजन कंट्रोल होगा या ये रिएक्शन रेट कंट्रोल। So obviously in the next lecture we will discuss how these two regimes help us design different